नानक दे कर हथ। बिलावलो महला पंजवा। शांत पाई गुर सतगुर पूरे। सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। शांत पाई गुर सतगुर पूरे। सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। रहाउ ताप पाप संताप बिनासे। हर सिमरत किल विख सब नासे। आनंद करहो मिलो सुंदर नारी। गुर नानक मेरी पैज सवारी। आनंद करहो मिलो सुंदर नारी। गुर नानक मेरी पैज सवारी। शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी दे विच सुभाईमान गुरु प्यारिओ आप सब धनता दे जोग हों, बड़भागे हों। गुरु पातशाह जी की बख्शिश कृपा दे सदका गुरबाणी विचार सुनने दे लई समझण दे लई गुरु दरबार दी हाजरी भर रहे हों। आओ गुरफतेह दी सांझ पाइए, विचार दी आरंभता करिए। सब ने बोलना जी आखियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंचम पातशाह धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज उन्हां द्वारा रचित पावन बाणी बिलावल राग दे विच आपां एक शब्द पढ़िया है, आपस विच रल के साझा कीता है। शब्द दे बड़े पवित्र बोल ने। बिलावल महला पंजवा। अगे पातशाह ने जिक्र किया शांत पाई गुर सतगुर पूरे। शांत तो भाव है शांति। आप इस गल नूं सारे जानते हो। सहज टका जिन्हों आत्मक ठंड भी कहा जा सकता है, जिन्हों अंदर दी ठंड या आत्मक ठंड भी कहा जाता है। हुण जिहड़ी आत्मक ठंड है ये बाहरी ठंड वांग किसे एसी कूलर आदक साधन दे नाल नहीं पैदा होंदी। बाहरी तौर ते एक तां मौसमी ठंड आ, मौसम दे बदलण दे नाल ठंड गर्मी बनदी आ। एक गर्मी हैगी ते उस गर्मी नूं असीं अपने कुछ क बनाए हुए यंत्रां दे राहीं ठंड दे विच एक दो चार कमरे जिन्नी लोड़ आ आपां ठंडे कर लैंदे आ, जिन्नी भी जरूरत आ। पक्खा कूलर जां एसी आदक दे नाल। हुण जिहड़ी ये ठंड आ गई तां साडे इउं कह लो हथ दे विच आ गई पैदा करनी। बाहरी जंतर दे नाल असीं पैदा कर लई, मौसम बदलण दे नाल पैदा हो गई।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਠੰਡ ਹੈਗੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਠੰਡ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਜੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਏਸੀ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਠੰਡੇ ਨੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਪੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਆਮ ਹੀ ਕਹਾਵਤ ਆ। ਹੀਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਏਸੀ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੰਡ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈ ਠੰਡ ਪਾਈ, ਸਹਿਜ ਪਾਇਆ ਟਕਾ ਪਾਇਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੋਂ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਕਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੇ ਨਾ ਵਗ ਜੀ, ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਵਗ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਪੂਰੇ ਕੋਲੇ ਜਾਈਂ ਤੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜੇ, ਅਧੂਰੇ ਕੋਲੇ ਵਗ ਜੇ ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਫਲਾਨੀ ਭਾਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਈ, ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਘਟੀਆ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਵਸਤੂ ਮਿਲੂਗੀ, ਵਧੀਆ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੂਗਾ। ਭਾਵੇਂ 2 ਰੁਪਈਏ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਣ ਪਰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਜਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਵੱਧ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ 2 ਰੁਪਈਏ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫਲਾਨੇ ਥਾਂ ਜਾਈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਕੋਲੇ ਜਾਈ ਅਧੂਰੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਵਗ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਵੱਧ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਧੂਰੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾਗਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਠਿਨ ਤਾਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੱਖਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਵਾਲ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਜਾ ਸਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਉਥੋਂ ਗਰੰਟੀ ਸੁਦਾ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣਗੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੂ, ਆਨੰਦ, ਠੰਡ, ਆਤਮਕ ਠੰਡ, ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਕਰੂਗਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ, ਅਧੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੰਕਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ। ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਤ, ਟਕਾ ਦੀ ਠੰਡ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਸੁੱਖ ਉਪਜੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਥਾਂ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੱਗਾਂ ਲੈਣ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪੱਗਾਂ ਹੀ ਪੱਗਾਂ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਰਾਸਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਪੱਗਾਂ ਹੀ ਪੱਗਾਂ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਦੁਪੱਟੇ ਹੀ ਦੁਪੱਟੇ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਹੀ ਚੁੰਨੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਭਾਵ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਣਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਵਾਧੂ ਆ। ਭਾਵ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਲਾ,
इस पूरे मेले दे विच किते भी सानू इयों लिखिया नहीं मिलेगा। की लिखिया? सुख ही सुख, जिन्ने मर्जी ले जा। ये किते नहीं लिखिया मिलना गा सुख ही सुख, भी इत्थे सुख ही सुख मिलते ने। मैं तो ये चाहांगा भी गुरु बख्शिश करे हर एक गुरुद्वारा साहब दे मेन गेट ते ये गल लिख के लगी होनी चाहिए है। पर लाऊ कौन? जिहड़ा आप सुखी होगा। गल तो इत्थे रुक गई ना, लगी होनी चाहिए आ, पर लावेगा कौन? जिहड़ा आप सुखी आ। जिहड़ा आप सुखी नहीं है वो थोड़ी लावेगा। सुख ही सुख जिन्ने मर्जी ले जाओ, गुरु नानक साहब दे घरों मिलते ने भाई, सुख ही सुख। पर पूरे बाजार चों, पूरे मेले चों कितों नहीं मिलणगे। फिर पातशाह लिखेगा सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। हुण सुख आ जिहड़ा वो किवें प्राप्त हुंदा गा, इहदे ते थोड़ी जी आपां व्याख्या करनी है। रहाऊ दा बंद चली जांदा। जिहड़ा सुख आ ना, सुख दा जन्म है तृप्ति च। सुख दा जन्म तृप्ति दे विचों आ। इउं कह लईए भी सुख दी मां संतोख है। सुख दी मां दा नां की आ? संतोख। जिहड़े बंदे कोले संतोख नहीं है वो कदे सुखी नहीं हो सकता, चाहे वो जिन्ना मर्जी अमीर होवे, जिन्ना मर्जी वो सुख सहूलतां दे विच लोड़ां दे विच रहिंदा होवे, भी उहदी हर एक ए तो जैड तक लोड़ पूरी हुंदी आ। पर जे उहदे जीवन च संतोख नहीं है तां चेता रखियो वो कदे सुखी नहीं हो सकता। ते जिहड़ा गुरु आ ना साडा गुरु दात ही संतोख दी दिंदा गा। संतोख थाप रखिया जिन सूत। संतोख दिंदा ना गुरु, बख्शिश करदा गा। पर संतोख प्राप्त कौन करदा? कोई कोई। नाल लफज की वरते आपां कोई कोई, सारे नहीं। हुण सुख दा जन्म की आ? सुख दा जन्म संतोख चों है। से संतोखी कौन ने? कोई कोई। बाणी च लिखिया ना, बिना संतोख नहीं कोऊ राजै। हुण भुखा मनुखा जिहड़ा वो दुखी हुंदा गा। जिन्हों पेट करके ना भोजन की भुख लगी आ वो दुखी आ। बाणी च लिखिया एक दुख भूख, लिखिया ना भी भुख दुखां दा कारण बन जाती आ। मान लो भुखे व्यक्ति ने चोरी कर ली, पकड़िया गया, चोरी कर ली, छित्तर पे, दुख मिलने शुरू हो गए ना, जेल च भी जाना पै गया, लोकां च बदनाम भी हो गया, लोकां च मूँह विखाउण भी नहीं हो गया, दुख पैदा हो गया। हुण दुख कित्थों निकलिया? भुख दे विचों। भुखे व्यक्ति नूं दुखी होना पिया, उहदे दुखां दा कारण भुख आ। हुण इत्थे गुरु साहब कहंदे बिना संतोख, संतोख तो बिना अपनी भुख दा दुख कोई मिटा नहीं सकदा। ते अज दे समय च आपां नज़र मार के वेख सकदे हां। आप मोटी जी निगाह मारनी आ, हर एक व्यक्ति ने अपने शरीर वाल भी असी रजे हुए हाँ कि असी भुखे हाँ, इन्नी निगाह मारनी आ मेरे ख्याल मुताबिक। चलो गुरु बख्शिश करे, बिरलियां रूहां नूं छड्ड के असी भुखे हाँ। कुछ कि ना हत्थां ते गिनण वाले लोकां नूं आपां छड्ड दो, 100 दे विचों 20 नूं छड्ड दो, 25 नूं छड्ड दो, 75 तां भुखे है ही है। भुख तो भाव की है? शरीर करके साडियां लोड़ां पूरीਆਂ ने, ये नहीं भी साडे कोले कुछ है नहीं गा। हो सकदा साल दे विचों दी कणक एक वार साडे कोले आउंदी है नवें सिरों, साल तो बाद। हो सकदा साडे कोले 2 सालां दा घर दे विच राशन इकट्ठा कीता पिया होवे। हो सकदा साडे कोले 5 साल दा राशन इकट्ठा कीता पिया होवे, पर असीं भुखे फिर भी आ। निगाह मार के वेख लो, निगाह मार के वेखनी पैनी है ना। भुख दे विचों दुख दा जन्म आ ते संतोख दे विचों सुख दा जन्म हैगा। हुण गुरु साहब कहंदे सुख लैना ना संतोखी बनना पऊगा। फिर पातशाह जी कहंदे उदां साडियां सरीरक तल ते सारियां लोड़ां पूरीਆਂ ने, कोई कमी नहीं है,
पर साडे जीवन च तृष्णा इन्नी वध गई, लालच इन्ना वध गया, साडे जीवन विच भुख इन्नी वध गई, असीं सब कुछ हुंदियां होइयां भी अंदरों भुखे आ, तृप्त नहीं हाँ। फिर पातशाह जी कहते बिना संतोख, संतोख तो बिना कोई रज नहीं सकता। जिहड़ा संतोख आ ना, ये हो सकता किसी दिहाड़ीदार कोले भी होवे। जिहड़ा बेचारा ना 5 10 20 50 रुपया 100 रुपया रोजाना कमाउंदा गा, संतोख उहदे कोले भी हो सकता। संतोख तां सीहे उप्पल कोले आ, जिहदे घर विच ना हो सकता एक डंग दा ही भोजन बनिया ते अगले डंग दा भोजन है ही नहीं गा, अगले डंग दा राशन है ही नहीं गा। संतोख तां भाई लालो दे घर आगा, निगाह मार के वेखियो। संतोख भगत रविदास जी दे घर आ, संतोख भगत कबीर साहब दे घर आगा, संतोख भगत सैन जी दे घर, भगत नामदेव जी दे घर आ। संतोख उन्होंने अपने जीवन का एक भी वो दिन वो वक्त वो पॉइंट नहीं है जिथे लालची वरती उन्होंने साडे इतिहास ने विखाई हो भी इत्थे लालच कीता इन्होंने। हुण अर्थ की बन गए भी गुरु पातशाह जी कहते संतोख तो बिना कोई मनुख रज नहीं सकता, बिना संतोख नहीं कोई रज है, कोई भी नहीं रज सकता। ते अगे जाके पातशाह ने होर भी लिखिया, कहते तृष्णा बुझै हर कै नाम, हरि परमात्मा दे नाम नाल ज्ञान दे नाल असीं संतोखी हो सकते हैं। साडी तृष्णा जिहड़ी आ वो बुझ सकदी है, बंद हो सकती है। तृष्णा बुझै हर कै नाम, महासंतोख होवै गुर बचनी, पूर्ण सतगुर ज्ञान। फिर असीं की बन जावांगे, महासंतोखी बन जावांगे। साडे जीवन दे विच ना संतोख पैदा हो जाएगा। ते पातशाह ने इदां भी लिखिया ना, पातशाह जी कहते ने जिहड़ी तृष्णा ना बिरले ही की बुझी ने। तृष्णा जिहड़ी कहते विरले विरलियां दी बुझदी है भाई, हरेक दी नहीं बुझदी गी, 100 दे विचों बिरले बिरले। देखो ये तो गुरु ने भी फैसला ले लिया, अपनी गल नहीं है भी जां तुहाडी गल आ जां मेरी गल आ भी तृष्णा बिरले बिरले दी बुझदी आ। गुरु ने बाणी च कह दित्ता भी तृष्णा जिहड़ी है बिरले बिरलियां दी बुझदी आ, हरेक दी नहीं बुझदी गी। वो कहते होंगे ना, कहते बंदे नूं लाख रुपया मिल गया तो बंदे ने ईमानदारी दिखाई, लख मिल गया ना ईमानदारी विखाई। ते कई बार बंदा एक टके ते 1 रुपये ते बेईमान हो जाता, 1 टके ते 1 रुपये ते बेईमान हो जाता। असीं अपनी भी बेईमानी वेख लईए, अपनी भी आपां लालची वरती वेख लईए। मन लो भी मैं किसी रेहड़ी वाले कोलों, अज दे हालात तां बहुत मंदड़े ने, भयानक ने अज दे हालात। मन लो मैं किसी रेहड़ी वाले कोलों कुछ सब्जी फ्रूट खरीद रहा गा, उन्हें जिन्ने रुपये दिते ने उन्ने दा सौदा तोलता ना, उन्हें जिन्ना भी भाव पैसा दिता गा। असी की कीता, साडी बिरती की आ, मतलब बंदा इन्ना क लालची हो गया, कदे कुछ चक के खा लिया, कदे कुछ चक के खा लिया, कदे कुछ मूँह च पा लिया। मान लो बंदे दी बिरती की आ, जिहने मैनू वध नहीं ना पाया, कोई ना जिन्ना टाइम मैं मैं दुकान ते खड़ा रेहड़ी ते खड़ा गा, उन्ना टाइम मैं कुछ ना कुछ आपदे मूँह च पाउंदा रहांगा। इत्थों तक लालच आ। चंगा फिर 2 मिर्चां भी दे दे, धनिया भी दे दे, आदा भी दे दे, पा दे, थोड़ा जा की फर्क पैंदा गा। चलो मान लो एक प्यार आ, वो वखरी गल आ भी दुकानदार ने प्यार च देता, वो वखरी गल आ। पर एक साडी भावना, लालची भावना भी जिन्ना तोलिया वो तो लिफाफे च पैक करा लिया ना, बाकी उस दिन ठूंगा मारी जानियां, वो लालची वरती हैगी। इत्थों तक भी साडी विरती है जिहड़ी ना वो लालची आ। उदां बंदा ईमानदारी दिखाउंदा, इहो जी गल नहीं भी नहीं दिखाउंदा। मैं भी ईमानदार दिखाउणा कि मैं भी बहुत ईमानदार हाँ भाई, सारी दिखाने आपां, पर गुरु साहब कहते नहीं, ये तो बिरले बिरलियां दी भाई तृष्णा बुझदी आ, हरेक दी नहीं बुझदी गी। जे हरेक दी तृष्णा बुझे ना फिर तो सारी दुनिया सौखी हो जे। मान लो भी अज बंदे दे दुखां दा कारण बंदे दी भुख आ, दुखां दा कारण तृष्णा, दुखां दा कारण साडे अंदर दी लालची वरती हैगी। ताइयों गुरु साहब ने कहा सुख लैना ना, असी कह दिता हाँ, जे सुख लैना तो गुरु नानक पातशाह दे घर च सुख ने, सुख ही सुख। जिवें दुकानां ते लिखिया ना, पग्गां ही पग्गां, चुन्नियां ही चुन्नियां,
इदां लिखिया है, कोई ना कोई हिंट दिता गा भी इत्थे फलानी चीज़ आम मिलती है भाई। तो गुरु नानक पातशाह के दरबार के गेट ते भी लिख के की लग्या होना चाहिए, सुख ही सुख, जिन्ने मर्जी ले जा, बिल्कुल फ्री। करना की आ, संतोखी बनना। संतोखी बन जा, सुख ही सुख मिलणगे। जे संतोख नहीं है तो असी सुखी नहीं हो सकांगे। ठीक है ना। फिर पातशाह ने की लिखेगा, शांत पाई गुर सतगुर पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। जो संतोखी बन गए ना, सुख पैदा हो गया, फिर साडे अंदर अनहद तूरा बजना शुरू हो जाता। अनहद तूरा तो भाव की आ, ज्ञान दी घंटी खड़कन लग जाती है। समझ गए ना। अनहद तूरे तो भाव की आ, ज्ञान दी घंटी वो खड़कदी है, वैल खड़कदी है ज्ञान दी। जदों भी साडे जीवन च किते भी तृष्णा वधदी है, लोभी वरती वधदी है, हावी हुंदी आ, लालची वरती हावी हुंदी आ, तां ज्ञान दी घंटी वज पैंदी आ, ओ रोक दिंदी है ना, ये काम नहीं करना। ज्ञान दी घंटी वज पई। जदों कदे साडे अंदर चोरी करन दी भावना बनी, ज्ञान दी घंटी वज पई, ओ जिहड़ी ज्ञान दी घंटी वजदी है ना, ओनू गुरबाणी ने अनहद तूरा कहागा। ते नहीं मुआफ करना। तुसीं सारे सियाणे हो, सूझवान हो, गुरु की कली कली गल नूं समझदे हो, रोज़ दा तुहाडा अभ्यास आ। पर नहीं, साडे संसार विच ना साडे बाबिਆਂ ने पता की कहागा, सानू मूर्ख बनाता। कहंदे तुहानू ना अंदरों कहंदे एक टी टी दी आवाज़ आऊगी, इदां आवाज़ आऊ कहंदे कोई। ते ओह की हुंदा? कहंदे ओह हुंदा अनहद तूरा, ना गप्प आ। इदां टी टी दी आवाज़ ना आई आ ना आवे, चाहे 4 घंटे बैठे रहो, 10 घंटे बैठे रहो, चाहे 24 घंटे बैठे रहो, बस अनहद तूरा की आ, टी टी दी आवाज़ नहीं। अनहद तूरा ज्ञान है। ज्ञान ने रिश्वत लैणों रोकता। अनहद तूरा ना, ज्ञान ने माड़े काम करन तो रोकता, उहनूं कहंदे ने अनहद तूरा। मन लो दुध किसी गरीब नूं देना सी, किलो 2 किलो, उदाहरण है कि समझण वास्ते, अद्धा किलो दुध आ ते अद्धा किलो विच पानी है, पानी पाता ना, उत्थे भावें 4 घंटे नाम जपीए ते भावें 8 घंटे, भावें 24 घंटे नाम जपीए, कहीए भी असीं नाम दे पुजारी आ, नाम जपदे आ, तां पर साडा नाम जपिया किसे लेखे नहीं है। क्यों नहीं लिखे है? क्योंकि किसे दे बच्चों लई असीं पानी ही बेचिया, दुध नहीं बेचिया हैगा। दुध नहीं बेचिया, किसी के बच्चों लिए पानी ही बेचिया हैगा। ते सोच के देखो, जे हुण ज्ञान का तूरा अंदर वज्जिया हुंदा तां ज्ञान के तूरे ने की आवाज़ देनी सी? नहीं भाई, अगले ने मसा मेहनत करके 4 पैसे तैनूं देने ने, ते अगले नूं वस्तु ना खरीदे, खरीदे रुपया भावें वध लै ला, भी इन्ने रुपया दे दो, वो वक्खरी गल आ भी मैं तां रेट वध के लूँगा भाई, मेरी चीज़ खरी होगी, कल नूं तेरी सेहत नाल किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होगा, ना तेरे बच्चों के सेहत नाल खिलवाड़ होवेगा। हुण उत्थे ज्ञान दे तूरे ने भाव की सानू समझा दिता, खरा बन जा ते खरा सौदा बेच। ज्ञान दे तूरे ने आ गल समझा दी, ते उदां टी टी दी आवाज़ां ना आईयां ना आउणियां ने। ते हुण तुसीं मेरे ख्याल मुताबक समझ गए होवोगे, जिवें आपां आनंद साहिब दे विच भी रोज़ पढ़दे हां, बाजे अनहद तूरे, उहदा मतलब साडे अंदर ज्ञान दी घंटी खड़कनी शुरू हो गई भाई। हुण पहली पंक्ति दी आपां विचार कीती आ, शांत पाई ठंड पाई गुर सतगुर पूरे, पूरे गुरु की कृपा सदका मैनू ठंड मिल गई, आत्मक आनंद मिल गया। फिर अगे सुख उपजे बाजे अनहद तूरे, गुरु कोले सुख ही सुख ने। ते जदों मैं आया ना, गुरु ने मेरी झोली च सुख पाते, ते सुख पाउण तो पहले गल कह दी सी, संतोखी बन जा। जे तेरे जीवन च संतोख आ ना, तां तू सुखी आ, जे संतोख नहीं है फिर तू सुखी नहीं है। अज संतोख जिहदे कोले नहीं है, वो खुद आप भी मच रहा ते होरां नूं भी मचा रहा है। बस इन्ना पक्खा तुसीं अगे आप ही गाहां उदाहरण जोड़ी चलो, किहदे बन्नी मर्जी निगाह मार लो, मुकेश बन्नी व टाटे बरले बन्नी, जिहदे मर्जी वल निगाह मार लो, सब दुखी ने, सब ही दुखी है ना। क्यों? क्योंकि अंदर भुख पैदा होगी। 2 पॉइंट आप इत्थे गुरु पातशाह तो पुछे ने, सुख दी मां दा नां की आ? सुख दी मां दा नाम अंदर दी तृप्ति, सुख दा जन्म संतोख विचों हुंदा गा।
ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਭੁੱਖ ਚੋਂ, ਭੁੱਖ ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉੱਦਾਂ ਡਾਊਨ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੱਜੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਹਿਲ, ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਫਸਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਭੁੱਖ 'ਚੋਂ ਆ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਪ, ਪਾਪ, ਸੰਤਾਪ, ਬਨਾਸੇ। ਬਨਾਸੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ? ਤਾਪ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਪਾਪ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਨਾ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਪ, ਤਾਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੁੱਖ, ਤੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ। ਪਾਪ, ਪਾਪ ਕੀ ਸੀ? ਬਕਾਰ। ਤੇ ਸੰਤਾਪ, ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਲੇਸ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੜ ਲਾਲਚ ਹੀ ਆ। ਬਸ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੜ ਕੀ ਆ? ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ। ਇਹੀ ਲਾਲਚ ਆ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੜ ਕੇ ਵਗ ਗਏ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋਗੇ। ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾ ਲਓ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ। ਅੱਛਾ, ਮਿਲੂ ਕੀ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਮਿੱਟੀ ਕਰਕੇ ਲੜਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਰ ਜੋਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਕੇ ਆ। ਜਰ ਪੈਸਾ, ਜੋਰੂ ਔਰਤ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਧਰਤੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਰ ਜੋਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ? ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਤਾਪ, ਪਾਪ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਕੱਟ ਤੇ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ। ਤਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ, ਪਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਕਾਰੀ ਭਾਵਨਾ, ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਕਲੇਸ਼। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਕਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਿਹਾ। ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਗਏ। ਜਰ ਜੋਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਕੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵਗ ਜਾਓ, ਮਸੀਤ 'ਚ ਵਗ ਜਾਓ, ਗਿਰਜਾ ਘਰ 'ਚ ਵਗ ਜਾਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵਗ ਜਾਓ, ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ? ਜਰ ਜੋਰੂ ਜ਼ਮੀਨ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਪੱਖ ਦੇਖਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਭਾਈ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨਾ, ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਾਪ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਆਦ, ਵਿਆਦ ਤੇ ਉਪਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਸਰੀਰਕ, ਵਿਕਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ੀ ਭਾਵਨਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਪਾਪੀ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਵੜ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਦੋ ਭਰਾ ਦੋਨੇ ਹੀ ਵਗ ਜਾਣ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜੀ ਦਵਾਈ ਦਿਓ, ਬੋਤਲਾਂ ਬਾਤਲਾਂ ਲਾਓ ਸਾਡੇ, ਕੋਈ ਟੀਕੇ ਟਾਕੇ ਲਾਓ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਮਿਟ ਜੇ। ਡਾਕਟਰ ਹੱਸ ਪਊ ਵੀ ਕਮਲਿਓ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਨਾ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਪਰ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੇਵਲ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਬੜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ,
लड़ाई रही आ, पर जर जोरू जमीन करके लड़ाई नहीं। वो जिहड़ी लड़ाई सी ना, वो सच ते झूठ की लड़ाई सी। झूठ सच नूं दबना चाहुंदा सी ते सच इशारा कर रहा सी भी इउं नहीं तू दब सकदा सानूं। उत्थे सच ते झूठ की लड़ाई आ, उत्थे जर जोरू जमीन करके लड़ाई नहीं है। नंबर 2 ते गुरु ने कदे लड़ाई नूं अपनी चार दुआरी दे अंदरले बन्ने टप्पण नहीं दिता। ये गुरु का निजम रहा। चाहे गुरु नानक साहब का जीवन आ, चाहे गुरु अंगद साहब का, चाहे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का, चाहे गुरु तेग बहादुर महाराज जी का। पर अज लड़ाई है जिहड़ी वो सच ते झूठ की भी नहीं रहेगी, जर जोरू जमीन करके पैगी ते लड़ाई अंदर भी टप्पी। दोने गल्लां तो असीं भाव की हो गए, पासे हो गए। दोने गल्लां तो असीं मुनकर हो गए, सच ते झूठ दे विचों भी निकल गए ते लड़ाई बाहर रखनी सी, बाहर दी बजाय अंदर आ गई। चलो गुरु साहब ने इत्थे सानूं दस दिता, वो परमात्मा कोले, गुरु कोले बहुत वड्डी शक्ति है। वो ताप पाप संताप खत्म कर दिंदा है। अगे पातशाह जिक्र करदे ने, हर सिमरत किल विख नासे। हरि परमात्मा नूं सिमरदियां ज्ञान प्राप्त करदियां साडी जिंदगी चों भाई ये किल विख खत्म हो जाते ने। लास्ट विच गुरु साहब जी कहते, आनंद करहो मिल सुंदर नारी। आनंद आनंदमयी जिंदगी, आनंद करहो मिल, मिल के किहनूं मिल के, सुंदर नारी। ते वो सुंदर नारी कौन आ? साडी आत्मा। हुण देखो अखरी अर्थ की ने सुंदर नारी, ते साडा ध्यान कित्थे जाऊगा? एक शरीर ते वगजू ना, शरीर ते नहीं लेके जाना। भाव ध्यान नूं जे भटकदा ना तैनूं गुरु कोल ही मोड़ के लियाओ। दोबारा पुछ लो भी पातशाह सानूं समझ नहीं आई, तू सुंदर नारी का जिक्र कीता ना, किहड़ी नारी का जिक्र कीता ते क्यों कीता, उहदे बारे सानूं दस। क्योंकि बाणी च इशारे किने, ठाकुर एक सवाई नार। सारियां जीव इस्त्रियां ने, सारियां जीव इस्त्रियां दा मालक पति एक आ, इक्को ही है ना। वो कौन है? परमात्मा। ते नारियां कौन ने? आत्मावां। साडी आत्मा परमात्मा दी नारी है, ओदी भाव पत्नी है। ते इत्थे जिक्र की कीता, अपनी सुंदर पत्नी नाल मिल के तू आनंदमई जिंदगी जियो। वो किहड़ी सी? आत्मा। आत्मा नाल मिल के। ते आत्मा नाल मिलाप किन्ना किन्ना दा गा? चलो आपां बहुती दूर नहीं जाना। जिवें अज दे समय च बहुते परिवार ने अपना टैंपरेचर वेखण दे लई ना, अपना बुखार तापमान वेखण दे लई अपने घर दे विच साधन लई बैठा। कोई थर्मामीटर, कोई पैमाना, कोई ब्लड प्रैशर चैक करना। बहुते परिवार ने अपने घर दे विच ही साधन लिया के रख लिया। उन्होंने कहंदे जदों लोड़ पई ना अपना आप ही चैक कर लवांगे, आपां नूं डॉक्टर कोले जाण दी लोड़ ही नहीं भाई। इदां दा साधन बन गया ना। गुरु साहब कहंदे देखो कम सी डॉक्टर दा, पर ले लिया वो असीं। क्यों ले लिया? क्योंकि असीं सियाणे हो गए भी चलो कोई ना डॉक्टर कोले कित्थे जावांगे, चैक अपने आप नूं कर लो ते दवाई डॉक्टर तो आपां लियावांगे जिहो जी लोड़ पई। हुण गुरु साहब कहंदे देख पुੱਤ, जिवें अज दी कहानी आ ना घर दी, ते इदां दी कहानी तू अपने जीवन च बना ला। अपने आप नूं चैक कर। ते असीं जवाब देवांगे भी ना मैं अपने आप नूं चैक किवें कर लूँगा। गुरु साहब कहंदे जिवें अपना बुखार आप चैक कीता ना, तू ही चैक कर ला। लक्षणां तो पता लग गया नहीं वाह बीमारी आ। हुण इदां गुरु साहब कहंदे तू अपने आप नूं चैक कर, बीमारी वेख। किहड़ी बीमारी वेखणी सी? भाव ये बीमारी वेखणी सी भी मैं मतलब बाहरी तौर ते शरीर, मैं मेरी अंदर दी आत्मक पत्नी नाल जुड़ चुकिया हाँ जां नहीं जुड़िया। इहनूं देखना, चैक करके वेखना आपां। शायद इत्थे साडा सारिआं दा जवाब होवेगा। विचों 100 दे विचों 10 क लोकां नूं छड्ड के, 10 क जणिआं नूं छड्ड के ना 90 दा यही जवाब होवेगा भी असीं अज तक अपनी अंदर दी अवस्था, आत्मक अवस्था जिन्हों आपां कहने, आत्मा नाल कह लो, आत्मा रूपी पत्नी नाल जुड़ नहीं सके, मिल नहीं सके, एक मंजे ते बैठ नहीं सके, एक जगह ते इकट्ठे नहीं हो सके। आत्मा होर पासे तुरी फिरदी आ ते शरीर होर पासे तुरिया फिरदा। दोवां दा इउं कह लो आपस विच विजोग पै गया, जिन्हों आपां कजोड़ भी कह दिंदे आ। जोड़ मलाप कजोड़ दोनों का फर्क पै गया। निगाह मार के वेखो, आत्मा अलग है ते शरीर अलग है। ते गुरु साहब कहंदे अपनी आत्मा नूं मिल, मिल सुंदर नारी। ऐं जिक्र कीता ना, पढ़ लिओ।
भाव गुरु साहब जी कहते अपनी आत्मा रूपी नारी नूं मिल के भाई जिंदगी सोहनी बना। गुरु नानक मेरी पैज सवारी। जदों तू अपने आप नूं चैक कर लिया, फिर गुरु नानक पातशाह ने शब्द रूपी विचार रूपी दवाई तैनूं दे देनी आ। उहदी दवाई प्राप्त करन दे नाल तेरी इज्जत वध जानी आ। पैज मीनज इज्जत, इज्जत तेरी वध जावेगी। फिर इस करके गुरु साहब जी कहते भाई तू अपने जीवन दे विच बस कुछ गल्लां नोट कर ला, इन्हां गल्लां नूं ध्यान च रख। ध्यान च क्यों रखना? क्योंकि तां ही तू सौखा हो सकदा। दुख क्यों आए? भुख वध गई। सुख कित्थों मिलूगा? गुरु नानक साहब कोलों। ये किवें मिलूगा? क्योंकि असीं तृप्त होना, जिन्ना टाइम तृप्त नहीं हुंदे उन्ना टाइम सुख नहीं आ सकदा। ते गुरु कोले आउण करके फिर जदों तृप्त हो गए, फिर उहने ताप पाप संताप ये खत्म कर देने ने। जदों ये तिन्ने रोग खत्म हो गए, फिर असीं अपनी आत्मा रूपी पत्नी तक पहुंच जावांगे। वो एक ना विचाले दीवार आ, कंध आ, उहदे तक पहुंच नहीं हुंदी गी। जो तिन्ने रोगां वाली कंध टुट गई ना, फिर असीं अगे चले जावांगे। किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटै। टुटै तो भाव टुटू किवें कंध टुटूगी ओह? किव कूड़ा टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। सबना दा धन्नवाद। भुल्लां दी खिमा। बाणी पढ़दे विचारदे बड़ियां भुल्लां रह जांदियां ने। संगत गुरु साहब बख्शण योग ने। सब दा धन्नवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुरता पाया सह सेती, मन बजियां बधाइयां। राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आईयां। शब्दोता गावो हरि केरा, मन जिनी बसाया।